Hello, Bhumika. Good evening. Can you hear me, Bhumika? Can you hear me, ma'am? Yeah, you're audible. Yeah, okay. Now you're visible. Hello, ma'am. All right, good evening. How are you? Fine, ma'am. Thank you. How are you? I'm absolutely fine. So, can we start if you are comfortable now? Yes, ma'am. All right. So, please introduce yourself, Bhumika. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I am Bhumika JP. I belong to the capital city of Karnataka, the Bengaluru. I've completed my schooling from Bengaluru itself. Later, I pursued my BSc graduation in agriculture from the University of Agriculture and Horticulture Sciences, Shivamogga. Shivamogga is also called the Malenadu of Karnataka. After pursuing my graduation, I decided that I should enter into the career. Talking about my hobbies, I usually won't find free time because I'm indulged in the preparation of exams. But when I get free time, I indulge myself in doing clay modeling. Talking about my family, we are a nuclear family of 4 members. My father owns a two-wheeler service center. My mother is a homemaker. My elder sister is an MSc student, and myself. This is all about me, ma'am. Thank you. All right. So, talking about AFO, why do you aim at being an AFO or precisely being a banker? Because you have other options, being an agriculture graduate, you have other options as well, like research, going into PhD. So, why AFO? Ma'am, in my family, it has always been that being a government employer or being in a government job is giving a prestige to the family. And I searched for such that career, and AFO was a better platform for me since I can continue my passion in agriculture, and also I will be benefited with a government job. So I decided to become an AFO. All right. So, talking about an AFO, what are the roles of an AFO? Being an AFO, what kind of help do you provide to the farmers? Yes, ma'am. The major role of an AFO would be providing loan to the farmer. It is under the KCC scheme. Apart from this, the role of AFO is also to solve the problems of farmer. Ma'am. All right. Have you heard about NPA? Yes, ma'am. NPA stands for non-performing assets. It is when the loan is not repaid for more than 90 days, ma'am, in case of normal loans. In case of agriculture, if the loan is not paid for one crop season in case of short duration crops and two cropping season in case of long duration crops, such loan will be considered as an NPA. All right. So, have you heard about monetary policy of RBI? Yes, ma'am. Monetary policy are the tools which RBI uses to control the inflation in the country. It includes tools like a repo rate, a reverse repo rate, cash reserve ratio, and statutory liquid ratio, etc. Okay. So, you stated about repo rate. What is the current repo rate as of now? Yes, ma'am. Current repo rate is 5.25%. Okay. All right. So, what do you understand by FPOs, which is farmer producer organizations? Yes, ma'am. Farmer producer organization is a group of farmers. They gather together and create an organization by which they can borrow the money in lump sum from the bank. They can also use the mechanization technologies, which is newly introduced. A farmer member can access easily the mechanization technologies, which he could not do it individually. The minimum number for an FPO will be 300. All right. Okay. So, talking about being an AFO, imagine that you are an AFO and you have a case in your hand where a farmer is a defaulter. He has not, he didn't don't have a good credit history as of now, and he is asking you for a loan. So, how will you tackle that situation?
Ma'am, firstly, I will find the reasons for him being a defaulter, be it crop failure or be it his not having the sufficient resources to carry on agriculture. I will assess the reasons why he is being defaulter. If I find the reason is genuine and he is genuinely couldn't pay the bank loan and is having a bad bank history, I will suggest him to recover the CIBIL score or to maintain the repayment capacity. And if he is eligible for the insurance, I will suggest him to apply for the Fasal Bima Yojana. Okay. So you stated Fasal Bima Yojana. Can you tell me the percentages of various crops that are to be paid by the farmers as a premium in the Fasal Bima Yojana? Yes, ma'am. It is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. It is provided by the government to uh, support the farmer in case of crop failure. The premium should be paid by the farmers in case of Kharif crops is 2%, in case of Rabi crops is 1.5%, and in case of commercial crops it is 5%. All right. So talking about your area in which you are currently residing, what are the major agriculture crops that you have seen? Yes, ma'am. I stay in the southernmost region of India, that is Karnataka. Here the climate is tropical to subtropical. We majorly grow ragi, rice, sugarcane, and in case of horticulture, you can see coconut and areca nut here. All right. So have you heard about KCC? Yes, ma'am. KCC is a Kisan Credit Card loan. It will provide the farmer the credit requirements for the purchase of inputs. There recent changes has been made in the KCC. The in modified interest subvention scheme, the loan limit has been changed from 3 lakh to 5 lakh, and also in case of collateral free loan, it has been changed from 1.6 lakh to 2 lakh now, ma'am, at present. All right. So you might have studied soil science as a subject in various semesters of your graduation. So do you think that the crop which is grown on any particular land has somewhat relation with soil structure? I mean, does soil structure impact the crop that is grown on that particular area? And if it does impact, then how? Yes, ma'am, I have studied soil science in my graduation in agriculture. The soil structure will definitely have a role in the health of the crop. The soil structure is the primary factor where the root development depends on. In case of a bad soil structure, the root cannot develop properly, due to which there is no crop stand and we will not get any yield. But in case of good maintained soil structure, the root health will be good, and hence the above ground part will also grow healthy and we can get a better yield. All right. So, Bhumika, your interview was one of the outstanding ones that I have taken till now because your knowledge is really on point. Every answer, and secondly, the updated knowledge, like the changed limit of KCC, right? So that means that you are updated with the regular information of agriculture background, and that is very beautiful. And definitely, you Thank you, deserve ma'am. to be an AFO. I'm not talking about the final result, but as of if you take my views, you definitely deserve to be an AFO because you have that capability in yours. All right. Just one thing that you have to work on is your confidence. The way that you're smiling now, you need to smile the similar way, just a slight smile. All right. Because I can see that your answers are on point, your knowledge is on point. The only thing that you are a bit nervous, I can see. You don't have to be because your answers are absolutely apt. There's nothing wrong in which you are answering. Your knowledge is very good. So just don't be nervous. Whatever you are telling right. Just have that confidence in yours. And this time AFO will be yours if you go with confidence. That's all. Yes, ma'am, I have a question for you. Yeah, sure. Ma'am, did my eyeball move away from your, like, was my eye contact proper? I don't know whether it Yeah, your was. eye contact was proper, but twice you looked your left side, I guess.
All right. But that is not a problem because when you will go for the interview, the panel members will be sitting from left to right. All right. So, not a problem. You can watch each and every one. You don't have to look straight. You can sometimes watch like this, and like that. So, that's not a problem. You don't have to look at any one person. So, that's absolutely no, not a problem that you can make eye contact with. Supposedly, there are five members. So, you can make eye contact with five of them while answering one single question. All right. So moving eyeballs is not a problem. Otherwise, I would have told you it's not a problem. You can go with whatever you are doing right now. That's perfect. Okay. Can you give me any tips to increase this confidence level, ma'am? Yeah, sure. To increase your confidence, I would suggest that practice in front of the mirror, right? Make your eye contact with your mirror. And if you have siblings, like you mentioned that you have one sibling, if she's staying with you, and if your parents are there with you, so practice in front of them. All right. Automatically, your confidence will boost up. But the thing is that you know them. So you are already confident in front of them while answering. The thing is that one person becomes nervous when they are in front of unknown people, right? Like you don't know me and Yes, you ma'am. are talking to me. Actually, this happened Okay. now. Yeah, that is why I'm telling you I that had you should. practiced with my sister, but I was not nervous that time. When I saw your face, it is new to me, so I was a bit nervous, ma'am. Yeah, so for that only I'm talking about that you have to, you know, talk in front of the mirror. All right. And if there is any other issues on your end, I will just mail you as of now. I have your mail. I will mail you. And then you can schedule your another mock if you want. That won't be chargeable. But if you want, I can schedule that mock for you because I can see that you have the capability. But the only thing that is lacking is your confidence, right? So that you can Yes, ma'am. basically do that. And mirror imaging you have to do. You have to talk in front of the mirror. Then only your confidence will Okay. increase. Just think as if you are talking to five, six persons in front of you. That's all. Okay. Thank you so much, ma'am. All right. It was nice talking to you. Thank you. Simran, are you there? Yes, ma'am. All right. Are you comfortable? Shall we start? Yes, I'm comfortable. Okay. So please introduce yourself, Simran. My name is Simran Safali. I am from Durgar, Jharkhand, which is also known as Badnath Dham. I did my graduation from Birsa Agriculture University, Ranchi, in 2022. I have a family of four members: my mother, my father, my brother, and myself. Currently, I am staying in Hyderabad with my husband, and whenever I got some free time, I love to do cooking, gardening, and watching movies. That's All right. First of all, I would like to mention one thing that you are married, and with that, you are doing your studies. That is itself commendable. So, a very good thing for that. And one thing that I would want to ask that if you become an AFO, how would you manage since you are married? So, if you're posted at a remote location, far away from where your current family is there, how will you manage that? Ma'am, I will manage it because my husband is currently working from home remotely, so he is able to relocate anywhere in India with me. All right, that is beautiful. Okay, so have you heard about Kisan Mandhan Yojana? Yes, ma'am. Kisan Mandhan Yojana is the scheme by the government in which uh, farmer get uh, um, an an assured income of 6,000 per year in the installment of 2,000 uh, in every 3 months. Okay, all right. So have you heard about PM Asha scheme, Pradhan Mantri Asha scheme? Um, mm,
Yes, ma'am. PM ASA scheme is for health sector. I am not aware of it. No problem. Ma'am. All right. So Okay. No problem. Okay. So, have you heard about Kisan call centers? What are they and when was it launched? Kisan Call Center was launched in 1998, and in this the Kisan Call Center can help the farmers in the rural area or other by helping them to solve the problems of the agriculture activities, and also mm, they can also provide the ma'am, may I speak in Hindi? हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्टेबली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। किसान कॉल सेंटर होता है, वो किसानों से किसान कॉल कर सकते हैं अब उनको, तो वो अपना बता सकते हैं कि कैसे आप क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। अब और फिर यही मैम इतना। ओके ओके रिसेंटली आप किसान कॉल सेंटर। ओके। हाँ हाँ कंटिन्यू करिए नो प्रॉब्लम कंटिन्यू करिए। ओके। किसान कॉल सेंटर डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होते हैं, 22 लैंग्वेज में होते हैं किसान कॉल सेंटर टू रिजॉल्व द क्वायरी ऑफ द फार्मर्स। ओके मैम, दैट्स। ओके तो आपके एरिया में पर्टिकुलरली जहाँ आप रहते हो कौन कौन से क्रॉप्स बेसिकली ग्रो करते हैं वहां पर? मैम आई एम currently living in Hyderabad, but I am from Devghat, Jharkhand. ओके So then क्रॉप्स I will कौन से tell ग्रो होते हैं about आप हैदराबाद Devghat. में? हाँ हाँ ओके आप वहां का बता दीजिए क्योंकि बेसिकली आप वहीं से बिलोंग करती हैं राइट राइट। Okay. In Jharkhand, rice and wheat are major crops, and also sugarcane and maize are ओके grown. शुगर केन की कोई दो वैरायटीज आप बता सकते हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है? Some currently I cannot recall. ओके ओके कोई बात नहीं। अभी रिसेंट में लाइक टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर गवर्नमेंट मिलेट्स को लेकर काफी ज्यादा प्रमोशन कर रही थी कि मिलेट्स लोगों को अपनाने चाहिए तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था मिलेट्स के लिए। क्या आपको वो टर्म पता है या फिर क्या आप वो टर्म बता सकते हैं? Yes, ma'am. I just need a moment. हाँ हाँ श्योर। And, and sorry, ma'am, I can't recall. ओके कोई I बात नहीं मैं know, बता but I देती हूँ। forgot. कोई बात नहीं जो मिलेट्स के लिए टर्म यूज हुआ था वो श्री अन्न था। इन केस आपसे पूछा Yes, जाए तो आप ma'am. बता सकते हैं। Okay, ma'am. ऑलराइट सो सिमरन आपके आपको आंसर्स आते हैं आई कैन सी दैट बट आप थोड़ा सा नर्वस हो आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो और आपने मुझसे बीच में पूछा कि आप इंग्लिश में या हिंदी में मतलब बोल सकते हो। तो देखो मैं एक मिथ बताती हूँ ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश में अगर बात करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे हिंदी में अगर बात करोगे तो नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में आंसर करना। आपका इम्पैक्ट हिंदी में ज्यादा अच्छा पड़ेगा बिकॉज आप उसमें कंफर्टेबल हो वो आपका कंफर्ट जोन है राइट। तो आप हिंदी में ही आंसर Yes, करिएगा। ठीक है जैसे मैंने इंग्लिश में पूछा कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैंने पूछा था आपसे कि सिमरन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो भी आप हिंदी में ही आंसर करिएगा वहां पे जब आपसे पूछा जाए क्यों? क्योंकि उन लोगों की एक ना लैंग्वेज सेट हो जाती है जैसे वो बात कर रहे हैं अदर अदर स्टेट्स अदर अदर लोकेलिटी से भी ma'am. बच्चे आते हैं। Yes. बोलिए। मैम, हैदराबाद पैनल से मैं दूंगी, तो वहाँ क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? आपके वहां पे रीजनल लैंग्वेज यूज होती साउदर्न है? स्टेट साउदर्न स्टेट मैम, तो आई थिंक इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं वो लोग। इनकेस अगर तो कोई रीजनल लैंग्वेज है आपकी वहां पर जो यूज होती है तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं अगर वहां पे रीजनल लैंग्वेज चलती है तो। ओके मैम।
मैम बाकी हैदराबाद की रीजनल लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तेलुगु। मैं अच्छा। झारखंड से हूँ, तो अभी मैं यहीं से भरी हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रही कि मैं इंग्लिश में बोल सकती, अ, या मतलब हिंदी में को बोलूंगी तो प्रॉब्लम होगा ज्यादा पैनल को। नहीं, नहीं देखो, प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, बट आप जब बोलोगे ना कि आप उनसे पूछ लेना और उनको पूरी बात बता देना कि सर बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम बिहार, बट आफ्टर माय मैरिज आई केम टू हैदराबाद, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी बिकॉज आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर हिंदी वॉज मेजर लैंग्वेज। आप इतना उनको बोल दोगे, दे विल अंडरस्टैंड। और हिंदी सबको आती है, दे विल अंडरस्टैंड हिंदी, क्योंकि वो भी दूसरे दूसरे स्टेट से आए हुए लोग होते हैं। आपको पता होगा कि एएफओ की जॉब ऐसी होती है कि रिमोट लोकेशन पे पोस्टेड होते हैं लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल अंडरस्टैंड हिंदी। बट आप उनको ये बात बता देना, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा उससे। आप बस उनको एक लाइन इंग्लिश में ये बोल देना कि सर आई वॉज फ्रॉम बिहार, आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू हैदराबाद, so I am more comfortable in Hindi because in Bihar major language is हिंदी। बिहार में हिंदी ही मेजर लैंग्वेज होती है, बिहार यूपी एमपी। तो फिर आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ओके ऑलराइट। मैम। सो इसके अलावा बस आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। जैसे कि मैंने भूमिका को बोला कि आप मिरर के सामने देखकर बात करो, मिरर से बात करो, जैसे कि आपके घर में और भी लोग होंगे उनके सामने आप इंटरेक्शन करो। तो आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आंसर्स आते हैं बट आप हेजिटेट कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो है कि लैंग्वेज बैरियर एक होगा, राइट। तो आप वो अभी मत सोचो, आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करो। अभी बहुत टाइम है आपके पास, आराम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलराइट। और लैंग्वेज के बारे में आप मत सोचो, आप इतनी लाइन उन्हें बता दोगे, उनको अच्छा ही लगेगा कि आप पहले से उनको क्लैरिफाई कर रहे हो चीजें। और बाकी आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स में आप पढ़ के जाइएगा, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स वो पूछते हैं वहां पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बस आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू गो थ्रू। आप प्रैक्टिस करिए, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, बस प्रैक्टिस करिए आप। ओके मैम। ऑलराइट, थैंक ओके। थैंक यू सो मच, and all the best to you both for the interview. यू। ओके मैम, थैंक Thank you, ma'am. ओके, सो आदित्य आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इन इंग्लिश? In both, ma'am, mix of that. ऑलराइट, ओके। सो गुड मॉर्निंग आदित्य, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, ma'am. My name is Ditya Vats, and I belong to Aboha region of Punjab, which is also famous as Mini California of Punjab. In my family, we are four members. My father is a greengrocer, my mother is a homemaker, and I have one elder brother. Talking about my education, I have completed my schooling from Navik Senior Secondary School, Abohar, and my graduation in Bachelor's of Agriculture from DAV College, Abohar, under Chandigarh in 2023. That's all about me, ma'am. Thank you. ऑलराइट। सो आदित्य, व्हाई डू यू वांट टू बी एन एएफओ? Ma'am, as I done my graduation in Bachelor's of Agriculture. During last year, I searched for the opportunities in which I can start my career. Then I get to know about as a AFO in banking sector. And the banking sector is a give great opportunity to the freshers and every year with good number of vacancies. And banking sector is a growing sector. And I find it a best start to for best start for my career option. That's why I started preparing for AFO. ऑलराइट। सो आदित्य, एएफओस के मेनली रोल क्या होते हैं अपार्ट फ्रॉम गिविंग लोन्स टू द फार्मर्स? बैंकिंग के लिए या फिर एक एएफओ का रोल क्या होता है अपार्ट फ्रॉम द लोन वर्क? मैम मेजर तो ये होता है कि प्री सैंक्शनिंग और पोस्ट सैंक्शनिंग सर्वेइंग करना, एक्सटेंशन वर्क करना कि फार्मर को अवेयर करना कि गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी नहीं है, सीनियर्स के फॉलोअप्स को फॉलो करना कि फील्ड विजिट्स वगैरह या फार्मर अपना लोन का प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम माइनर, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच की अगर कोई और ऑपरेशन है तो उसमें हेल्प करना। दैट्स ओके। ऑल मैम अपार्ट फ्रॉम लोन। ओके आदित्य, आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुना है, दैट इज रिलीज बाय आरबीआई? यस मैम। हाँ जी, प्लीज एक्सप्लेन दैट।
मैम मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जो आरबीआई यूज करता है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द मार्केट. If the market is excess in the economy, then RBI used to absorb it from the market, and if there lack of the money supply in the market, RBI inject into it All right. through policy rates. All right. So can you please name and explain any two terms or any two tools that RBI use under monetary policy or to control the inflation? Yes, ma'am. One is repo rate and second is reverse repo rate. Repo rate is basically in rate at which bank can get loan from the RBI against securities. And the second is reverse repo rate, in which a bank can park their excess money with RBI against securities provided by RBI. All right. What is the current repo rate? Can you tell? Current repo rate is, ma'am, recently reduced to 5.25%. करेक्ट. ऑलराइट. सो आपने फसल बीमा योजना के बारे में सुना होगा, राइट? तो उसमें कितना प्रीमियम जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? मैम ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम है, जो फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाती है, और इसमें क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से प्रीमियम होता है. जो इन फॉर खरीफ रीजन इट इज 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, एंड फॉर 1.5, and for commercial and horticulture crop it is 5%. ऑलराइट, करेक्ट. सो लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, आदित्य. एक सिचुएशन मान लेते हैं कि आपके पास एक फार्मर का आपसे इंटरेक्शन होता है. एंड अक्सर होता है कि फार्मर्स जो हैं वो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं उनसे लोन ले लेते हैं बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि बैंक्स भी उनको एक सिक्योर्ड अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, राइट? सो इफ यू कम अक्रॉस एनी फार्मर जो हेजिटेंट है बैंक से लोन लेने में क्योंकि उसको प्रोसीजर नहीं पता है और उसे डिटेल्स नहीं पता है, तो आप उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे आप उसे बताएंगे, क्या चीजें आप उसके सामने रखेंगे जिससे वो उसको भरोसा हो कि हाँ बैंक में जाकर भी लोन वो ले सकता यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई टेल देम कि मैं उसको बताऊंगा कि बैंक से इजी लोन लेना इतना हैटिक टास्क नहीं है. इजीली आजकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्मूथली वर्क करती है, और बैंक क्विकली रिस्पॉन्स करता है किसी भी एप्लीकेशन के, अगर फॉर फार्मर को लोन चाहिए बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर. और अगर फार्मर प्रॉपर एलिजिबल है तो उसको एक गुड अमाउंट ऑफ लोन हम दे सकते हैं विद मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द मार्केट. और उस पे हम किसी भी तरह की फोर्स नहीं करेंगे कि उसको इस डेट पे अमाउंट 100% वापस देनी है. हम उसकी पार्टीशंस में भी पेमेंट रीपेमेंट वो कर सकता है मैं. और इसको डिफरेंट डिफरेंट लाइक फार्मर बैंक प्रोडक्ट्स लाइक केसीसी में के बारे में बता सकते हैं कि इससे वो अपना कंजप्शन लोन भी ले सकता है, अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी लोन यूज कर सकता है. है. ओके. तो एक सिचुएशन मान लेते हैं दैट यू बिकम एन एएफओ और आपको एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे पोस्टेड कर दिया जाता है जहाँ पे ज्यादा यू कैन से फैसिलिटीज नहीं है उतनी ज्यादा. एंड सेकेंडली, बीइंग एन एएफओ आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टे अप फॉर लॉन्गर आवर्स क्योंकि क्लेरिकल स्टाफ में जल्दी छुट्टी हो जाती है बट ऑफिसर्स हैव टू स्टे बैक इफ द वर्कलोड इज देयर. सो हाउ विल यू मैनेज दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर योरसेल्फ? Ma'am, as if talking about the working hours, ma'am, as a being aspirant, I work from day to night, and working late time will not be a difficult task for me, according to me. And if resources are less, then I will manage to maintain with in a proper way, so I can fulfill the demands of the bank branch. Ma'am. All right. What do you mean by self-help groups? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें 10 to 20 मेंबर्स होते हैं, जो खुद के रिसोर्सेज पूल करते हैं और खुद के मेंबर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं. मैं Okay, all right. Have you heard about Kisan Samman Nidhi Yojana? यस मैम. Can you explain that to me? श्योर मैम, इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल help to the farmers 600 annually in part of three installments, 2000
of after 4 months, every 4 months. ओके आदित्य, आपने 600 बोला, इट्स 6000। आपने इंस्टॉलमेंट सही बोली, दैट 2000 की इंस्टॉलमेंट में देते 6,000. हैं, बट हाँ जी। ऑलराइट, सो आदित्य, आपकी नॉलेज एकदम एप्ट है। बस वन थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन। आप जब जैसे कोई आंसर आप दे रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप आई कांटेक्ट लूज कर दे रहे हैं। सोचने के लिए हम यहाँ वहां देखते हैं ना, वही चीज हो रही है। पैनल मेंबर्स आपके सामने बैठे होंगे, 5 या 6 लोग होते हैं, करेक्ट? तो आपको अगर आई कांटेक्ट लूज करना है या फिर एक पर्टिकुलर को नहीं देखना है, तो आप दो तीन मतलब रनिंग आईज के थ्रू देख सकते हो। बट उनसे आप आई कांटेक्ट मेंटेन करना, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। आपके सारे आंसर्स बहुत सही हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी है, जो कि देख रहे हो आप सारे आंसर्स अच्छे से दे रहे हैं। इवन जो मॉनेटरी पॉलिसी, एब्रप्ट क्वेश्चंस भी, मैंने पहले बैंकिंग पूछा, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद जो एचआर राउंड क्वेश्चंस होते हैं, आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर किए। कॉन्फिडेंस भी है आप में, वेरी वेल डन। बट बस आप जो आई कांटेक्ट लूज कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा वर्क करिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। आप बहुत अच्छा करेंगे इंटरव्यू में। आप में नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप सारे आंसर्स एकदम करेक्ट दे रहे हैं। Thank you. ऑलराइट, थैंक यू। Thank you, ma'am. I will work on it. Okay, sure. Chandni, are you there? Yes, ma'am. All right. Am I Are you audible, comfortable? ma'am? Yeah, you are audible. Are you comfortable? We can start. Yes. Yes, ma'am. All right, Chandni, please introduce yourself. Good morning, ma'am. My name is Chandni Patle. I am from Gondia district of Maharashtra, which is also well known for the the Nagzira Tiger Reserve. Coming to my education, I have completed my graduation in BSc Agriculture Honors. Talking about my family, we are 6 members: me, my brother, my parents, and grandparents. हॉबीज की बात करूँ तो मुझे योगा करना पसंद है, क्योंकि ये मेरे माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखता है। साथ ही साथ मैं ओल्ड फिल्मी सॉन्ग सुनना भी पसंद करती हूँ। Okay, all right. तो चांदनी, बीइंग अ फीमेल, आपको पता होगा कि एएफओ इज अ फील्ड जॉब, इट्स अ टफ जॉब। तो आप वो चीज कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज फीमेल्स आर वेरी ससेप्टेबल टू गोइंग इन फील्ड्स एंड वर्किंग हार्ड फॉर दैट। इस चीज में अपर हैंड होता है मेल्स का। सो हाउ डू यू मैनेज दैट? मैम, मेरे पापा फार्मर्स है और मैं फील्ड में जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब मेरा स्कूल डे नहीं होता था तब मैं पैडी ट्रांसप्लांटिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए मैं अपने मदर के साथ जाया करती थी। तो मुझे फील्ड वर्क से या फील्ड विजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली हैंडल कर लूंगी मैम। ओके, वेरी नाइस। आपने पैडी बोला, तो आप कोई दो वेराइटीज बता सकती हैं जो आपके रेलेवेंसी में रही हो या बचपन से जाती हैं फील्ड्स में? तो कोई दो वैरायटी बता सकती हैं? यस मैम। यस मैम, सबसे पहले है जय श्री राम। ये छोटा दाना होता है, मोस्टली कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। फिर HMT आता है मैम, इसका बड़ा दाना होता है, तो फैमिली जनरली कंजप्शन के लिए यूज नहीं करती, इसको सोल्ड कर देती है। साथ में सेंटेड वेराइटीज की बात करूँ तो वर्षा, काली मूछ, ये दो वेराइटीज भी लगाई जाती है मेरे एरिया में। ओके। आपने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सुना होगा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? यस मैम, ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये 2020 में लाई गई थी। इसमें जो फार्मर्स हैं उनकी सॉइल टेस्टिंग की जाती है। इसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं मैम। अगर मैं NPK, ये मेजर में आते हैं, प्राइमरी मेजर। फिर सेकेंडरी मेजर में सल्फर, माइनर न्यूट्रिएंट में कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड सॉरी मैम, आगे याद नहीं आ रहा है। और PHB, EC एंड ऑर्गेनिक कार्बन मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक सिचुएशन मान लेते हैं दैट एक फार्मर है, यस मैम। ही हैज टेकन अ लोन, आप ही ने दिया था, एंड अब वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है उसका। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल यस मैम, करेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि रीजन क्या है कि वो रिपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। शायद हो सकता है कि उनकी फसल खराब हो गई हो, इसलिए वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। तो अगर सपोज फसल खराब हुई इसलिए नहीं कर पा रहे, तो मैं और एक क्रॉपिंग सीजन का वेट करूंगी उनका, ताकि वो रीपे कर पाए। और कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं रिशेड्यूल अगर हो सकता हो तो मैं वो भी करूंगी मैम। लोन, सॉरी मैम, लोन।
ओके। चांदनी, इस चीज में ना आप एक और चीज ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि मतलब मैं फार्मर के लिए ये करूंगी कि मतलब मैं रिस्ट्रक्चर कर दूं या फिर एक क्रॉप सीजन का वेट करूं। आप इससे पहले ना एक और लाइन ऐड कर देना, दैट विल ऐड वेटेज टू योर आंसर। एंड द लाइन इज कि यस मैम। क्योंकि मैं बैंक की एम्प्लॉय हूँ तो मैं ये भी कंसीडर करूंगी कि ऐसा कोई डिसीजन ना हो जिससे बैंक को भी नुकसान हो। तो मैं बैंक के बिहाफ पे और उसका अच्छा सोच के ही सारी चीजें आगे करूंगी। तो आपको ये चीज ऐड करनी है वहां पर। ओके मैम। ओके। तो आपने एफपीओस के बारे में सुना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन? यस मैम। मैम ये फार्मर्स का ग्रुप होता है। इसमें मिनिमम 300 फार्मर्स चाहिए होते हैं। इसमें फार्मर्स साथ में मिलके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। और अगर उनको उनके एरिया में अगर मेकेनाइजेशन नहीं है तो मशीन्स वगैरह खरीद के फिर जिनको ज़रूरत होती है वो अपने फार्म में यूज़ कर सकते हैं। साथ में अदर पर्पस के लिए भी कॉमन कोई भी पर्पस हो उसके लिए फार्मर्स इकट्ठा एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं मैम। ओके। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट्स फाइनेंशियल ऑल। इंक्लूजन्स? यस मैम। फाइनेंशियल इंक्लूजन वो होता है अगर जैसे कोई रूरल एरिया है जहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज अभी भी नहीं हो रही है तो ऐसे एरिया में फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बैंक्स अपना कोशिश करती है कि जो बेसिक फाइनेंशियल फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करे, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दिलवाना। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है मैम। ओके। चांदनी, आपने मेंशन किया था कि बचपन से आप फील्ड पर जाती हैं और आपने काम भी काफी किया हुआ है इस फील्ड में। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने बचपन से लेके अभी तक ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देखी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो है तो आप ज्यादा रेलेवेंट रही हैं इस फील्ड से। तो क्या प्रॉब्लम्स होती है फार्मर्स को, या फिर क्या ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट तो लॉन्च करती है बट वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाती हैं? तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और आप उसको कैसे एनकाउंटर ओवरकम करने की कोशिश करोगे इफ यू बिकम एन एएफ? यस मैम। सबसे पहला मेरे एरिया में प्रॉब्लम है मैम, लेबर्स नहीं मिल पाते क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स है वो खेती में ध्यान नहीं देते और बाहर जॉब के लिए जाते हैं मैम। दूसरा, मेरे गांव में तो मैकेनाइजेशन है लेकिन मैं आसपास के गांव की बात करूँ तो वहाँ जो भी फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स या जो भी ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो नहीं होते, तो वो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है या फिर सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ये टेक दो केयर। प्रॉब्लम है मैम। साथ में वेदर वेदर अनसर्टेनिटीज है मैम, क्योंकि अगर स्टैंडिंग क्रॉप है, फसल हार्वेस्टिंग के लिए आ गई तो तभी अचानक अगर बारिश हो जाती है तो धान की फसल खराब हो जाती है मैम, वो काला पड़ जाता है तो उसको रेट नहीं मिल पाता मार्केट में। साथ ही साथ अभी इनपुट के कॉस्ट काफी हाई हो रहे हैं मैम। दूसरी बात, अगर स्कीम्स की बात करूँ तो फार्मर्स को काफी सारी स्कीम्स के बारे में नहीं पता, और पता होता है तो उनमें एक हेजिटेशन होता है मैम, वो लोन लेना नहीं चाहते। एक रहता है कि अगर मैं रिपे नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी। और अगर सपोज मैं एफओ बनूंगी तो मैं इस चीज को ऐसे एड्रेस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अगर मैं मैकेनाइजेशन की बात करूँ तो एफपीओ एक अच्छा जरिया है मैम, कि अगर वो फार्मर्स साथ मिल के आए और मशीन्स खरीदे और फिर अपने फार्म पे यूज करे। दूसरी चीज, स्कीम्स के बारे में उनको उनके लैंग्वेज में इजीली वो जिस तरह से समझ पाए उनको अच्छे से उसके डिटेलिंग बताऊंगी। साथ ही अगर मेरे पास कोई ऐसे वीडियोस या जो उनको एविडेंस के थ्रू दिखा सकूं कि वो भी ये ले सकते हैं, अगर वो एक सीजन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। इस तरह से मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी मैम। ओके, वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड। अच्छा, एमएसपी तो आपको पता ही होगा। एमएसपी का कुछ डिसएडवांटेज भी है या फिर एडवांटेजेस है? मतलब आपके पर्सनल व्यू में क्या है, एमएसपी सही है या नहीं? मैम ये स्कीम तो सही है मैम, क्योंकि अगर बाजार में अगर बेचने जाए तो सही दाम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर एमएसपी के थ्रू बेचा जाए तो फार्मर को सही दाम मिलता है। लेकिन एक पॉइंट पे एक थोड़ा डिसएडवांटेज इसलिए हो जाता है मैम कि जो छोटे दाने की जो फसल होती है हमारे एरिया में तो उसको भी सेम ही रेट मिलता है, लेकिन वही अगर मार्केट में बेचे तो एटलीस्ट 500 उनका बेनिफिट होता है। तो बस ये इस पॉइंट में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है मैम।
ओके, तो आपने बोला जैसे जो डिसएडवांटेज आपने बताया, क्या उसको ओवरकम करने का कोई तरीका है? मतलब आपको क्या लगता है, क्या उसको ओवरकम कर सकती है हमारी गवर्नमेंट ऐसे बैरियर्स को? यस मैम, जैसे सिंपल राइस के लिए एक अलग रेट है, और जो सेंटेड राइस या बासमती राइस है उसके लिए एक रेट है, तो और एक ऐड कर सकते हैं जिसमें जो छोटा दाना है उसको एक अलग से रेट दिया जाए, तो इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं मैम। ऑलराइट, चांदी, आपने सारे आंसर्स बहुत ब्यूटीफुली दिए और नॉलेजेबल भी है, मतलब आपके पास नॉलेज पूरी है। बस एक चीज मैंने देखी, आप थोड़ा सा नर्वस हो, मतलब बीच बीच में आप आंसर सही कर रहे हो यस बट आप मैम, भूल जाते थे, जबकि आपको आंसर वो आता था। फंबल कर रही थी मैम। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज क्या मतलब क्यों आती है ये चीज? आप नर्वस थे या फिर आप घबरा रहे हो या फिर ऐसा यूजुअली होता है? मैम मैं घबराती हूँ मैम, मुझे क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू है, इसके पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैम। ओके, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप देखो आंसर्स बहुत अच्छे दे रहे हो। आप अगर आप कॉन्फिडेंटली आपके आंसर्स दोगे तो फिर आपका जो इम्पैक्ट अभी है आपका 2x इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप ना ओके मैम। जैसे आपने बोला कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं, अगर आप पेरेंट्स के साथ में अभी हो, तो आप उनके सामने प्रैक्टिस करो। और यस अगर मैम। उनके पास नहीं है अभी टाइम, या फिर अपने फ्री टाइम में आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा ना, आप जो फंबल कर रहे हो वो ओके आप मैम। नहीं करोगे। एंड क्योंकि आपके आंसर्स ओके मैम। बहुत सही हैं, तो अगर आप फंबल नहीं करोगे और कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा आंसर करोगे ना, तो मतलब आपके अच्छे खासे अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। बिकॉज आप आंसर पूरा आता है आपको, बट आप बीच में फंबल करते हो तो आपको जो आगे बोलना है आप वो भूल जाते हो, जबकि आपको पूरा आंसर यस आता मैम। है। हाँ जी, यस तो मैम। बस आप इस चीज पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। नॉलेज आपको पूरी है, बट यस मैम। बस इस चीज पे थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस आप बूस्ट करो। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, पेरेंट्स के सामने, सिबलिंग्स के सामने प्रैक्टिस करो, और उनको एक क्वेश्चंस की लिस्ट पकड़ा यस दो मैम। कि मुझसे ये क्वेश्चंस आप पूछो, वो पढ़ के आपसे पूछ लेंगे, आप बस अपने आंसर्स प्रैक्टिस करो उनके सामने। दैट्स इट, अपने आप जो यस मैम। आपका फंबल होना है वो अपने आप सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मैम, मेरा हाँ वॉइस जी। का भी इशू है, मेरी आवाज काफी छोटी है, तो मैं अपनी वॉइस को मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सबसे पहला मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी आवाज ज्यादा जोर से नहीं निकलती, और मैं ज्यादा जोर से बात करने जाऊँ तो ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा चिल्ला के बात कर रहा है, तो ये इशू कैसे ठीक करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम। देखो, जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे थे, आपकी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही थी। मे बी शायद आप ब्लूटूथ लगाए हो या फिर जो भी है, इस वजह से प्रॉपर आ रही है आवाज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन स्टिल यस सी सर। यू। यस। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी यस आवाज मैम। मुझे तो प्रॉपर आ रही थी, बट अगर आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज अगर स्लो है, तो अपने वोकल को थोड़ा सा, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप प्रैक्टिस करोगे ना यस तो मैम। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। बट हाँ, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है आपको वहां पर। आप एक नॉर्मल पिच पे, नॉर्मल टोन पे रखो। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप लाउड हो जाएगी वो। प्रैक्टिसिंग ही आपको करनी होगी, ओके प्रैक्टिसिंग से मैम। ही आपका जो फंबलनेस और जो वॉइस पिच है वो दोनों हाई हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू यू बोथ। एंड आई विश आप दोनों एएफओ बन थैंक जाएं जल्दी। ऑलराइट, थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, man.